بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ عرب میں لوگ بت پرستی کے اتنے عادی بن چکے تھے کہ وہ جب بھی سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔ ان میں گمراہی اور جہالت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کسی کو اپنا داماد نہ بنانا پڑے۔ اس گمراہی کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن پیدائش سے 50 سال پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماحول تیار کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایریوں سے جاری ہوا تھا، اسے بعد میں ایک قبیلے والوں نے دشمنی میں آ کر بند کر دیا تھا۔ اسی طرح 100 سال گزر گئے اور زمزم کا کنواں اسی طرح بند رہا۔ لوگ بھول گئے کہ یہاں مکہ میں کوئی زمزم کا کنواں بھی تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عبد المطلب رات میں سوئے ہوئے تھے تو انہیں خواب میں ایک انسان نظر آتا ہے اور جو کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ عبد المطلب ابھی اس انسان سے کچھ پوچھتے ہی کہ اتنی ہی دیر میں ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون انسان تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو، اور یہ پاک پانی کا کنواں کہاں ہے۔ اگلی رات جب پھر سے سوئے تو وہی انسان انہیں پھر سے نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ ابھی عبد المطلب اس آدمی سے کچھ پوچھتے ہی کہ ان کی آنکھیں پھر سے کھل گئیں۔ تیسری رات حضرت عبد المطلب نے پھر سے وہی خواب دیکھا تو آج خواب میں ہی اس انسان سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ پاک پانی کا کنواں کیا ہے اور کہاں ہے۔ لہٰذا اس انسان نے جواب دیا کہ یہ زمزم کا کنواں ہے جو تمہارے دادا اسماعیل کے لیے جاری کیا گیا تھا اور 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ اے عبد المطلب، تم صبح کعبہ شریف کے پاس جا کر بیٹھ جانا۔ ایک کوّا آئے گا اور ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ مارے گا، بس سمجھ جانا زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ صبح عبد المطلب کعبے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، دوپہر کا وقت تھا لیکن ابھی تک کوئی کوّا نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تبھی اچانک وہاں ایک کوّا بولتا ہوا آیا، پھر ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ ماری اور اڑ گیا۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ وہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا، اے مکہ والو، وہ زمزم کا کنواں جو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اسی جگہ پر ہے۔ مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ اس زمزم کے کنویں کو جا کر کھودو جو 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے کہ ارے عبد المطلب، کہاں تم ان چکروں میں پڑے ہو؟ اس زمزم کے کنویں کو بند ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں، اب تو وہ بالکل ختم ہو گیا ہوگا، اور اس کوے کا کیا بھروسہ کہ ہم اس قدر محنت کریں اور پھر ہمیں کنواں نہ ملے تو ہماری تو محنت برباد ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر مکہ والے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ عبد المطلب نے کہا، اے لوگو، میں تو یہ کنواں ضرور کھودوں گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ عبد المطلب کے پاس اس وقت صرف ایک ہی لڑکا تھا، ان کا نام حارث تھا۔ اسی کے ساتھ لے کر عبد المطلب وہ کنواں کھودنے لگے۔ اس وقت مکہ کی زمین پتھریلی تھی، وہاں مٹی نہیں تھی بلکہ زمین پر پتھر ہی پتھر تھی، اسی لیے دونوں باپ بیٹے چھینی ہتھوڑی سے ان پتھروں کو دن رات توڑتے تھے۔ روزانہ صبح کو جاتے اور پتھروں کو توڑنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے لیکن زمزم کا کنواں نہیں ملا۔ اب تو لوگوں نے مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا۔ ایک دن دوپہر کی کڑی دھوپ میں پتھروں کو توڑتے ہوئے حضرت عبد المطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہنے لگے، اے میرے مولا، اگر آج مجھے زمزم کا کنواں مل جایا، اگر آپ نے زندگی میں مجھے 10 لڑکے دیے
तो उनमें से एक लड़का आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा। ये दुआ मांगने के बाद हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने छेनी हथौड़ी से जैसे ही अगले पत्थर पर वार किया तो एकदम से पानी का एक फुहारा ऊपर की ओर उठा और फिर देखते ही देखते नीचे से पानी निकलने लगा। पानी निकलता देख सारे मक्का वाले जमा हो गए और वहाँ बहुत खुश हुए, क्योंकि मक्का में पानी आसानी से नहीं मिलता था। अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, भाग जाओ ए मक्का वालों यहाँ से, आज से इस जमजम के कुएं पर सरदारी मेरी ख़ानदानी की रहेगी, लेकिन हाँ, तुम सब इसका पानी पी सकते हो। ज़माना गुजरता गया। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब को अल्लाह ताला ने 15 लड़के दिए। तो जब सारे लड़के ज़बान हो गए तो एक दिन अब्दुल मुतल्लिब ने अपने सारे लड़कों को जमा करके कहा, ए मेरे बच्चों, जब मैं जमजम का कुआं खोद रहा था तो मैंने अल्लाह से नज़र मानी थी कि अगर ये जमजम का कुआं मुझसे आसानी से खुद गया तो मैं अल्लाह की राह में एक लड़के को कुर्बान करूँगा। मेरे बच्चों, क्या तुम कुर्बान होने के लिए तैयार हो? सारे लड़कों ने कहा, अब्बा जान, अब हम 15 लड़कों में से जिसका भी हाथ पकड़ लेंगे वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। अब्दुल मुतल्लिब कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए मैं 15 पर्चियाँ बनाऊँगा और सब में लिखूँगा कि इस लड़के को नहीं ज़बह करना है, लेकिन एक पर्ची में लिख दूँगा इस लड़के को ज़बह कर देना है। अब वो पर्ची जिस लड़के का हाथ में आएगी उसे अल्लाह के लिए ज़बह होना पड़ेगा। सब ने कहा, ठीक है अब्बाजान, हम तैयार हैं। पर्चियाँ बनाकर लुटाई गए। सारे लड़कों ने अपनी अपनी पर्चियाँ खोली तो सब में निकला कि इस लड़के को नहीं ज़बह करना है, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल्ला ने अपनी पर्ची खोली तो उसमें लिखा था कि इस लड़के को ज़बह कर देना है। जब अब वाली पर्ची हज़रत अब्दुल्ला के हाथ में देखकर अब्दुल मुतल्लिब भी तरफ उठे, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला लड़कों में सबसे छोटे थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। अब्दुल मुतल्लिब अपने सारे लड़कों में सबसे ज़्यादा अब्दुल्ला से मोहब्बत करते थे और मक्का वाले भी हज़रत अब्दुल्ला से उनकी शराफत की वजह से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन अब्दुल मुतल्लिब सरदार आदमी थे, इसलिए अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हटे। एक छुरी उठाई और अब्दुल्ला को ज़बह करने के लिए खड़े हो गए। जब मक्का वालों को खबर हुई कि अब्दुल मुतल्लिब अपने बेटे अब्दुल्ला को ज़बह करने जा रहे हैं तो सारे मक्का वाले जमा हो गए और अब्दुल मुतल्लिब से बहस करने लगे, कुछ भी हो जाए हम अब्दुल्ला को ज़बह नहीं होने देंगे। अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, ए मक्का वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं अल्लाह से नज़र मान चुका हूँ कि मैं अपने 10 लड़कों में से किसी एक को अल्लाह के लिए ज़बह करूँगा। इतनी देर में आस बिन वाइद, जो मक्का के बड़े सरदारों में से थे, वो सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि ए अब्दुल मुतल्लिब, आज चाहे तलवार चलें या खून की नदियाँ बह जाए, फिर भी हम अब्दुल्ला को ज़बह नहीं होने देंगे। अब्दुल मुतल्लिब ने जब देखा कि सारे मक्का वाले एक तरफ हैं और मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ तो कहने लगे कि ए मक्का वालों, एक शर्त पर मैं अब्दुल्ला को छोड़ूंगा, वो ये है कि नजरान में जो एक जादूगर औरत है, अगर वो कह दे कि अब्दुल्ला को न ज़बह करो तो मैं ज़बह नहीं करूँगा, वरना आज मैं अब्दुल्ला को ज़बह करके रहूँगा। मक्का वालों ने कहा, ठीक है, हम नजरान चलेंगे और उस औरत को मालूम करेंगे कि वो जो कहेगी हम उसके लिए तैयार हैं। और फिर एक बहुत बड़ा काफिला मक्के से नजरान की तरफ रवाना हुआ। 400 किलोमीटर दूर नजरान का सफ़र करके ये तमाम लोग उस जादूगर औरत के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। तो उस जादूगरनी ने कहा, तुम लोगों में अगर किसी बंदे को कत्ल कर दिया जाता है तो उसके बदले में तुम क्या मुआवजा लेते हो? सबने बताया, हम उसके बदले में 10 ऊँट मुआवजा लेते हैं। उस जादूगरनी ने कहा, तो फिर एक पर्ची में 10 ऊँट लिखो और दूसरी पर्ची में अब्दुल्ला का नाम लिखो और पर्ची उड़ाओ। फिर अब्दुल मुतल्लिब उनमें से एक पर्ची को उठाएं। अगर उस पर्ची में अब्दुल्ला का नाम निकले तो दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट और बढ़ा दो और अब्दुल्ला को बचा लो। इस तरह जब अब्दुल्ला का नाम निकलता रहे तब तक दूसरी पर्ची पर 10-10 ऊँट बढ़ाते जाओ, और जब खुलने वाली पर्ची पर ऊँटों का नाम निकल जाए तो अब्दुल्ला को बचा लो और उतने ऊँटों को ज़बह कर दो। सारे लोगों को यह फैसला बहुत पसंद आया और फिर मक्का वापस आकर पर्चियाँ बनाई।
हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने अपने 100 ऊँट सफ़ा पहाड़ के पास लाकर खड़े कर दिए और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप यानी हज़रत अब्दुल्ला खड़े हो गए। पर्चा बनाकर उड़ाए गए तो अब्दुल मुतल्लिब ने जब पर्ची खोली तो उसमें लिखा निकला, अब्दुल्लाह को ज़बह कर दो। यह पढ़कर दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट बढ़ा दिए गए और दोबारा पर्ची उड़ाई गए तो फिर से अब्दुल्ला का नाम निकला। ये देखकर दूसरी पर्ची पर फिर से 10 ऊँट बढ़ा दिए गए। करते करते 90 ऊँट बढ़ा दिए गए, क्योंकि हर बार हज़रत अब्दुल्ला ही का नाम निकलता जा रहा था। उन्हें ज़बह कर दो। आखिर में हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, ए लोगों, ये आखिरी बार होगा, अगर इस बार भी अब्दुल्ला का नाम निकलता है तो मैं अब्दुल्ला को ज़बह कर दूंगा। सभी लोग खामोश खड़े थे। अब्दुल मुतल्लिब भी बहुत परेशान थे कि शायद अब अल्लाह की मर्ज़ी है कि अब्दुल्ला को ज़बह कर दिया जाए। और फिर इस आखिरी बार की एक पर्ची पर 100 ऊँट लिखा गया और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा गया और पर्ची उठाए गए तो उसमें लिखा था कि 100 ऊँट ज़बह करो। यह पढ़कर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी और सब ने मिलकर एक बहुत तेज़ नारा लगाया और कहा, चलो भाई, अब अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़बह करो। लेकिन अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, नहीं नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो दोबारा भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़बह करो। सारे लोग खुश होकर कहने लगे, चलो ऊँटों को ज़बह करो। लेकिन अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। फिर तीसरी बार पर्ची उड़ाई गई तो तीसरी बार भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़बह करो। यह पढ़कर सारे लोग खुशी से झूम उठे और अब्दुल मुतल्लिब ने भी अपने बेटे अब्दुल्ला को गले से लगा लिया और फिर 100 ऊँट ज़बह कर दिए। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को न सिर्फ लाइक करें, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।